السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمام قسم کی تعریفات و توصیف و کبریائی و بڑائی و عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وبارک وسلم. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائی اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ جس مہینے کے اندر داخل ہوئے ہیں وہ مہینہ ہے ربیع الاول، اور شاید ربیع الاول کی آج 5ویں تاریخ ہے. ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑی بدعت ہمارے سامنے کھڑی ہے. ہمارا معاملہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. خطبہ مسنونہ کے درمیان سورہ آل عمران کی 3 نمبر کی آیت ہے، جس میں نبی کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت جو ہے تمہارے اوپر نچھاور کر دی ہے، اور دین اسلام سے کہتے ہیں اسلام سے ہم راضی اور خوش ہوئے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت آئی، ان کی بھی وفات ہو گئی. اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب دور خلافت آئی تو ان سے آ کر ایک یہودی نے آ کر ان سے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے نبی کو، ہمارے پیغمبر کو اگر وہ چیز ملتی تو ہم اس دن جشن مناتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ مجھے پتا ہے وہ کون سی چیز ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، اور وہ کون سی آیت ہے، اور وہ کون سی سورہ میں ہے، اور وہ کس جگہ پر نازل ہوئی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں کو روک رکھا ہے. کسی گھٹایا یا بڑھانے کی اجازت ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، ورنہ ضرور ہم جشن مناتے، ضرور ہم اس میں کچھ کمی بیشی کرتے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، جس چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ وہ چیز مکمل ہو گئی ہے، اس میں گھٹانے اور بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج معاشرے کے اوپر آپ نظر ڈالیے، معاشرے کے اوپر آپ دیکھیے
कि कितने लोग ऐसे हैं मुआशरे के अंदर नामो निहाद मुसलमान जो अपने आप को इस्लाम और मुसलमानों का ढिढोरा पीटते हैं, ना जाने कौन कौन सी ऐसी बिदात ईजाद करते हैं और फिर अपने आप को मुसलमान भी तस्वीर करते हैं। मेरे दिलों में भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया और कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और कहा कि तुम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना चाहते हो तो उनके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। उनकी इत्तिबा करने का मतलब यह है कि उनकी सुन्नत को जिंदा रखो, उनके सुन्नत को अमल करो, उनके सुन्नत पर अमल करो, काम करो। यह हमें हुक्म दिया गया है। हम लोग ये भी जानते हैं कि सुन्नत के खिलाफ अगर कोई चीज है तो वो बिदात है। जी हाँ, अगर सुन्नत के खिलाफ कोई चीज है तो वो बिदात है। जिस तरीके से रात की अपोजिट जो होती है वो दिन होता है, मर्द का जो अपोजिट होता है, जो दिन होता है वो औरत होती है, इसी तरीके से सुन्नत का जो अपोजिट है वो बिदात है और बिदात का शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत को ये पैगाम दिया, तमाम लोगों को ये हुक्म सुनाया और कहा हमारी जो शरीयत है, हमारे जो अहकामात हैं, अगर उसके अंदर अगर हमने जर्रा बराबर भी घटाव और बढ़ाव किया तो वो क्या है, वो मरदूद है, वो मरदूद है, वो काबिल कबूल नहीं है। मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, कहा कि एक जो बिदाती होता है वो बिदाती अगर नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, जिहाद करे, अल्लाह के रास्ते में बहुत सारी चीजें खर्च करे और इसी तरीके से अच्छे से इंसाफ करे, ये सारी चीजें कोई माने नहीं रखती हैं। ये सारी चीजें कोई माने नहीं रखती हैं। आप देखिए मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमान मिलेंगे जो ऐसे ऐसे रोजा रखते हैं कि उनके ऊपर कितनी भी बड़ी शिद्दत हो जाए, उनके ऊपर कितनी भी परेशानियां हो जाए, लेकिन वो रोजे को तोड़ते नहीं, रोजे को नहीं तोड़ते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब ये मौसम आता है, जब ये दिन आते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मुसलमान का होने का ढिढोरा पीटते हैं, सबसे बड़े मुसलमान का ढिढोरा पीटते हैं। ये समझते हैं कि अगर आज के दिन अगर हमने ये जश्न नहीं मनाया, अगर आज के दिन हमने ये खुशियां नहीं मनाई तो हम मुसलमान नहीं होंगे। मेरे दीनी और मिली भाइयों, सवाब हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे ज़राए दिए, बहुत सारे ज़राए दिए हैं। आपके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाजें दी हैं, 5 वक्तों की नमाजें, आप नमाज पढ़िए। हमें कुरान मजीद जैसे अजीम किताब दी गई है, हम उस किताब की तिलावत करें। हमें बहुत सारे रास्ते हैं सवाब हासिल करने के लिए, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि दीन के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि इधर उधर की बात करके, खुराफात करके दीन के अंदर बढ़ा चढ़ा के हम सवाब हासिल करेंगे या हम अपनी आखिरत को संवारेंगे, तो याद रखिए हम शैतान के धोखे में पड़ रहे हैं। शैतान हमें धोखा दे रहा है, शैतान के बहकावे में हम आ रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरीके से हमें इस्लाम हमें लाकर दिए हैं, हमें उसी तरीके पर अमल करनी है, घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं और कहते हैं कि कोई आदमी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरीके से अमल कर रहा है तो उसका सारा अमाल जो है, उसकी सारी चीजें वो क्या है, वो सारी चीजें बेकार हो जाती है। इसी तरीके से इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, और वो कहते हैं कि अगर दीन के साथ इस तरीके से कोई खिलवाड़ कर रहा है, दीन के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि दीन के अंदर ये सारी चीजें जो नहीं बतलाई गई शायद छुपाई गई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो क्या कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बात चीजें छुपाई, खान और रिसाला, ये वो समझ रहा है। सोचिए ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम ये समझते हैं
कि ये दीन के अंदर बिदात ईजाद करना, दीन के अंदर घटा बढ़ा देना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो आप इस कौल के अंदर आप समझ सकते हैं कि उनका कलाम क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत उन्हें जो मिली थी, जो शरीयत की तबलीग करने को मिली थी, उस शरीयत के अंदर उन्होंने बात चीजों को छुपा दिया। सोचिए कितनी बड़ी खयानत वाली बात है। हम इसको समझ सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं, और मुआशरे के अंदर हमें चाहिए कि ये सारी चीजें लोगों के सामने आम करें, लोगों को बतलाएं कि अगर कोई आदमी बिदात कर रहा है तो गोया कि वो ये समझ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अंदर खयानत की है। उसकी सोच यही हो सकती है। और इसी तरीके से एक दूसरा कौल है, बयान किया जाता है कि जो शख्स अगर इस सोच के साथ कोई बिदात ईजाद करा, उसको मालूम है, तो उसने गोया कि दीन के साथ वो ये समझ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घटा बढ़ा दिया। इस तरीके से बहुत सारे उलमा और इल्म किराम के आपको अक़वाल मिल जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमारे सामने या हमारे मुआशरे के अंदर या हमारी बस्ती में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई शख्स अगर इस तरीके का अमल कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम खुलकर उसकी मुखालिफत करें। हमारा काम यह है, हम ये नहीं कहते कि लड़ाई झगड़ा करें, हम ये नहीं कहते कि मारपीट करें, लेकिन कम से कम इतना तो बनता है कि हम खुलकर उसकी मुखालिफत करें, अपने बच्चों को वहां पर जाने से रोके। ये सारा हमारा काम हो सकता है। मेरे दिनों बिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और कहा, यौम तबय्यदु वुजूहु व तस्वद्दु वुजूह फअम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ुक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कयामत के मंजर को लोगों के सामने लाया और बतलाया कि बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो सरसब्ज जो शादाब होंगे, उनके चेहरे पर रौनकें होंगी, उनके चेहरे पर नूर होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो बिल्कुल मुरझाए हुए होंगे, उनके चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उनके चेहरे की रौनक खत्म रहेगी। और इसकी तफसीर में उलमा का बयान है कि जो रौनक वाले चेहरे रहेंगे वो अहलुस सुन्ना वल जमाअह वाले रहेंगे। अहलुस सुन्ना का वो मतलब नहीं कि जिसको लोग समझते हैं वो सुन्नती नहीं, बल्कि वो तो बिदाती है। इस बात को याद रखिए, वो सुन्नी नहीं है। अहलुस सुन्ना तो हम लोग हैं जो कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं, तो उससे मुराद अहलुस सुन्ना वल जमाअह है, यानी अहलुल हदीस हैं और इल्म वाले हैं। इस बात को याद रखिए। लेकिन उस वक्त ऐसे चेहरे होंगे कि उनके चेहरे जो मुरझाए होंगे वो अहलुल बिदात होंगे, वो अहलुल बिदात होंगे। जी हाँ, जो लोग बिदातें करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके चेहरे को क्या करेगा, उनके चेहरे के अंदर से रौनक खत्म कर देगा, उनके चेहरे मुरझाए होंगे। और जाहिर सी बात है जब हमारा मामला इतना खतरनाक है तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सजा नहीं देगा? जरूर देगा, और देना भी चाहिए। मेरे दिनों मिल्ली भाइयों, इसी तरीके से एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और कहा, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिऊस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इरशाद फरमाया और कहा कि ये मेरा रास्ता है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, कई सहाबे किराम थे आपके साथ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई लकीरें खींची, एक दाएं एक बाएं, एक उधर एक इधर, और एक लकीर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल अपने सामने की थी और कहा कि वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिऊस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये आयत पढ़ी और कहा कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, ये मुतफर्रिक़ रास्तों की पैरवी मत करो, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा पैरवी करो। मेरे दिनों मिली भाइयों, इससे यह पता चलता है कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों के अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता अगर हम इख्तियार कर रहे हैं, अगर हम कोई दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं, तो याद रखिए कि हमको गुमराह होने से कोई नहीं बचा सकता है। हमें जो है गुमराह होने से और हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं और अगर हम फलाह चाहते हैं तो हमारे लिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका रास्ता हमें इख्तियार करनी होगी। और अगर उसके अलावा अगर हम कोई रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो याद रखिए कि उसका जो जुर्म होगा बहुत भयानक होगा। इसी तरीके से
अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है और कहती है इज़ा रअयतल्लज़ीना यत्तबिऊना तशाबहा मिनहुम इब्तिग़ा। और इसकी एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और कहा हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिनहु आयातुन मुहकमातुन हुन्न मुतशाबिहात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, कहा कि कुरान मजीद की कुछ ऐसी आयतें हैं जो बिल्कुल मुहकम है और कुछ ऐसी आयतें हैं जो मुतशाबिह है। मुहकम का मतलब यह है मेरे दिल मिली भाइयों कि उसके जो मानी है बिल्कुल साफ है, बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन मुतशाबिह जो है उसके मानी और मफ़हूम हर किसी को नहीं पता है। लेकिन आज आप माशरे के अंदर देखिए चंद नामो निशान नामो निहाद जो अपने आप को उलमा कहने वाले दो चार आयतों के तराजू पढ़ लेते हैं, जो चार आयतों की तफसीरें पढ़ लेते हैं और पूरे कुरान मजीद की मनमानी तफसीर करते हैं, मनमानी तफसीर करते हैं और ये समझते हैं कि हम मुफस्सिर कुरान है। इसका जो नज़्म है, इसका जो तरीका है मेरे दीनी मिली भाइयों, आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उसकी तफसीर की। मैं एक आयत में आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयत नाज़िल फरमाई और जुल्म से शिर्क को जुल्म से ताबीर किया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया यहाँ पर कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया वही लोग अमन वाले हैं और हिदायत याफ्ता हैं। जब यह आयत नाज़िल हुई असहाबे किराम ने पढ़ी, असहाबे किराम को बात नहीं समझ में आई, क्योंकि जुल्म जो है वो हकीकत में कुछ और है। माशरे के अंदर जिस तरीके से जुल्म की जो ताबीर बताई जाती है या जुल्म को जिस तरीके से समझा जाता है वो कुछ और है। और वहां भी अरब के अंदर भी यही सारी चीजें थी। असहाबे किराम खास करके अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके सामने जब ये बात आई तो परेशान हो गए और परेशानी के आलम में अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वहां जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया और कहा, या नबी अल्लाह अय्युना लम यस्लिम नफ्सहु, अय्युना लम यस्लिम नफ्सहु। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम में से कौन है जो अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करता है। जाहिर सी बात है इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। अगर कोई ये समझे कि मुझसे कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं हो रही है, तो वो झूठ बोल रहा है। मेरे दिल में भाइयों, जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर ये बातें उन्होंने पेश की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा लैसल्लज़ी काना लैसल्लज़ी कमा तज़ुन्नु अलैसा मा क़ाल अल-अब्दु सालिह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीर बतलाई, उसकी तफसीर बयान की और कहा कि जो तुम माना ले रहे हो, जो तुम मफहूम ले रहे हो, जिसका तुम गुमान कर रहे हो वो उसका मतलब नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह के नेक बंदे ने क्या कहा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अब इस तरीके से अगर कोई आदमी लफ्जी तर्जमा करके या लफ्जी तफसीर करके और ये समझे कि वो मुफस्सिर कुरान है या इसी तरीके से लोगों के सामने उसकी आयतें बयान करके उसकी तफसीर मनमानी कर दे और वो समझे कि नहीं मैं ही सब ठीक हूँ, मैं ही सब बेहतर हूँ, सब कुछ मैं ही बेहतरीन तरीके से करता हूँ, ये कहाँ की इंसाफी है मेरे दीनी मिली भाइयों। वो सहाबे किराम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे रहा करते थे, दाएं बाएं रहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई बात निकलती थी, हर कोई टूट पड़ता था वो उनसे अखज़ कर ले, वो उनसे ले ले वो बातें। अब बतलाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर ये सारे सहाबे किराम और उनसे जो चीजें हमें अखज़ हो रही है ये बेहतर है या इन जाहिलों की बात, इन जाहिलों की जो मनमानी तर्जुमा कर रहे हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था सूरतुल ज़ुहा की एक आखिरी आयत जिसके बारे में उन नालायकों ने इसी तफसीर बयान की और कहा कि इसका मतलब यह होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाए। ऐसी मन घड़त बातें लोग करते हैं। और मैं ये नहीं बतलाऊं मेरे दिल में भाइयों, अगर आप 30 साल पीछे चले जाइए, 30 साल ज्यादा नहीं, जो लोग उम्र दराज हो सुने होंगे, ये जो दिन आने वाला है इस दिन को लोग क्या कहते थे, इस दिन को 12 वफात कहते थे। 12 वफात, जी हाँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे। और मेरे साथ एक मरतबा मामला हुआ कि एक साहब ने आकर कहा कि हमारे यहाँ ये ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही 12 वफात और आप आइए। तो मैंने कहा कि भाई क्या आप करते हैं? उसने कहा कि मिठाइयाँ खाते हैं, ये करते हैं। बहरहाल
तो मैंने कहा ये बतलाओ, आपके वालिद गिरामी अगर इंतकाल कर जाएं और उस दिन आप खुशी मनाओगे? उस दिन आप खुशी मनाओगे? ये इंसाफ का तकाजा है। तो उसने फौरन अपनी बात को घुमा दिया और कहा नहीं नहीं मौलाना साहब, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ईद मिलादुन नबी है। तो मेरे दीनी उम्मीली भाइयों, ये 30 साल पहले 12 वफात हुआ करती थी, आज लोगों ने उसकी जो हेडिंग है चेंज करके उसको ईद मिलादुन नबी बना लिया है। और एक दलील वो लोग पेश करते हैं, एक दलील और पेश करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत सारे मजाहिब वाले जो अपने अपने नबियों की जो बर्थ है, तारीख पैदाइश है, उस दिन खुशियां मनाते हैं, हम क्यों ना मनाते? यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तारीख पैदाइश है उस पर लोग हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि ईसाई लोग अपने पैगंबर की बर्थडे मनाते हैं, हमें मनाने में क्या हर्ज है? मेरा जवाब यह है कि क्या आप ईसाई मज़ाहिब के मानने वालों को हक तस्लीम करते हो? बतलाओ, बतलाओ और डंके की चोट पर बतलाओ। अगर आप उनको हक तस्लीम कर रहे हो और आपका ये गुमान है, आपकी ये सोच है कि ईसाई मजहब हक पर है, तो बतलाओ, क्यों नहीं बतलाते हो? बतलाओ अगर आप हक को तस्लीम करते हो। उनका जवाब होगा नहीं। अगर आप किसी ऐसी कौम की या किसी ऐसे मजहब की आप इत्तिबा कर रहे हो जबकि वो काफिर है, आप उसकी इत्तिबा करके क्या साबित करना चाहते? उसकी बात इससे यही साबित होता है कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह गुमराह हो। और अगर आप ये समझते हो कि नहीं, वो जो बर्थडे मना रहे हो नाजायज और हराम है, तो आप क्यों मना रहे हो? आप क्यों मना रहे हो? इस तरीके से मन घड़त बातें आपके सामने, अभी जो चंद दिन बाकी हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आएगी और अपने अपने कानों से सुनोगे भी। लेकिन मैं इसलिए बतला रहा हूं ताकि सामने कभी कोई चीज आए तो उसका डटकर मुकाबला होना चाहिए। और जो अपनी जमात के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरों मेहराब से बहुत सारी ऐसी चीजें बतला दी जाती है, उनके बड़े बड़े मुफ्ती भी एक आम आदमी से, एक आम अहलुल हदीस से दूर भागते हैं। जानते हैं ये लोग हक पर हैं और इनका एक बड़ा आलिम ही इनका एक जाहिल से, इनका एक कम पढ़े लिखे से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए ये सारी चीजें बतलाई जाती है। इसलिए नहीं बतलाई जाती है कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, इसका मतलब नहीं है। इसी तरीके से इसी आयत की तफसीर में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा कि जो लोग इस तरीके से हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम दिया है, उसके चाहिए कि उनसे दूर रहो, फहज़रूहु, उनसे दूर रहो। और इसी तरीके से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया और कहा कि उससे मुराद खवारिज है। यानी बहुत सारे अपनी अपनी तफसीर लोगों ने बयान की। मेरे दीनी अमीली भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब आए, यहूदी, ईसाई, ये खास करके ये दो मज़ाहिब इस्लाम के सामने मौजूद है, आज भी है। अपनी हकीकत पे तो नहीं है, लेकिन आज भी हमारे सामने चैलेंज के तौर पर है लोग। इन लोगों का काम क्या था? इन लोगों ने जो बड़े बड़े जो गुनाह किए, अपने अंबिया को कत्ल किया, अपने अंबिया को कत्ल किया। इन लोगों ने दीन के अंदर तहरीफ की, अपनी किताबों के अंदर तहरीफ की और अपने अंबियाओं के ऊपर इन लोगों ने उनके साथ गुलू किया। ये 3 बड़े बड़े इनके गुनाह हैं। आज वही चंद गुनाह हैं और वही चंद जो जराइम है इस उम्मत के अंदर आ गए, इसी उम्मत के अंदर। जी हाँ, उसमें से सबसे बड़ा जो गुनाह है, अंबिया को तो आने का सिलसिला खत्म हो चुका, अंबिया नहीं आने वाला कोई, लेकिन जो किताबों के अंदर जो तहरीफियत है या जो सुन्नत के अंदर जिन लोगों ने अपनी मनमानी जो तफसीरें की है, वो चीज आज हमारे सामने इसी उम्मत के चंद खास लोग एक चैलेंज बनकर खड़े हुए हैं। जी हाँ, एक चैलेंज बनकर अपनी मनमानी तफसीर करते हैं और अगर कभी उनसे कोई मुहासबा हो जाए, कभी उनसे गुफ्तगू हो जाए और बातें करने का अगर मौका मिले तो बिल्कुल दूर भागते हैं, हत्ता तक की गाली गलौज पर भी आ जाते हैं। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, गाली गलौज तक, और उनके मिंबर और मेहराब से तो आपको गालियां ही सिर्फ सुनने को मिलती है। तो ये सारी चीजें मुआशरे के अंदर धीरे धीरे बड़ी तेजी से फैली जा रही है। उन लोगों ने अंबिया के साथ जो गुलू किया, यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा गर्दाना, ईसाइयों ने
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا. اس امت کی جو خرابیاں ہیں ان کے اندر بھی یہی چند چیزیں ملی جلی ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو تفسیر وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی بہت سارے اپنے منمانی کرتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے تفسیر کرنے کے لیے؟ ہمیں اگر کوئی چیز محکم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے الا ماشاء اللہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارا اس میں چھان بین کرے. لیکن اگر کوئی چیز متشابہ ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اندر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اصحاب کرام کی جو اقوال ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں آپ کو ان ساری چیزوں کے اندر مل جائے گی. تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہو جائے گی، اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. جیسا کہ بھی بتلایا آپ لوگوں کے سامنے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اگر اس زمانے کا کوئی آدمی اس کا ترجمہ کرے تو نہیں سمجھ پائے گا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے کسی بھی قرآن مجید کی آیت کو تفسیر کیا جا سکتا ہے اور اس میں اصحاب کرام کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے. دوسرا جو گناہ ہے ان کا، دوسرا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے غلو کیا. غلو کیا، مقام کو کہیں بڑھا دیا اور کہیں گھٹا دیا. اب یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، جو آپ علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے، اس تبلیغ کے اندر ان لوگوں نے ان لوگوں کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ خیانت کی گئی. جی ہاں، یہی سب معاملہ ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو گھٹایا گیا ہے. لیکن دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ دے دیا گیا. یہاں تک کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا. جی ہاں، اب دیکھیے ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب تھے، یہ بھی ایک معاملہ ہے ان کا. لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں بھی نہیں کہا اور قرآن مجید کی کئی آیتیں اس کی شاہد ہیں، گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدھا منع کیا. ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ گفتگو کی اور گفتگو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں اللہ چاہیں. دیکھیے جملے پر غور کیجیے، صرف اتنا کہا تھا کہ آپ چاہیں اللہ چاہیں. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوئی اور کہا کیا تو نے مجھے اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کر دیا؟ صرف تھوڑا سا جملے کا فرق ہوا تھا میرے دلوں میں بھائیوں. تو اس ذرے سی باتوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعینات رہتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہو کہ اللہ چاہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ثم ایک لفظ ہے ثم جو جملوں کو بالکل الگ تھلگ کرتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر اس کے بعد میں چاہوں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو تعلیم دی ہے، تو ہمیں اسی تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیے. غور کرنے کا مقام ہے کہ ذرہ سی بات پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساس رہتے تھے کہ آنے والی جو امتیں ہیں کہیں ایسا نہ ان ساری چیزوں سے بھٹک جائے اور دوسرے راستے پر چلے جائے یا راستے سے بھٹک جائے. ان ساری چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بالکل تعینات رہا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے لیے اور کہا لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تم ان امتیوں کی طرح ان کی اتنی زیادہ اتباع کرو گے کہ ایک ایک انگوشت اور ایک ایک ہاتھ کے برابر کرو گے. یہ الفاظ کئی مرتبہ علیہ السلام نے کہا اور کہا کہ یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ ہم لوگ جانتے ہیں ایک جانور ہے، کہا اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو یہ امت بھی ہوگی، یہ امت بھی ان لوگوں کی اتباع کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جس کی امت یہ ہماری آپ کی امت ان کی اتباع کرے گی؟ کیا وہ یہود و نصارہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دے دیا
कि जो पहली उम्मत है यहूद और नसारा जिस तरीके से गुमराह हुई थी उसी तरीके से ये उम्मत भी उनकी पैरवी करेगी। आज देखिए मुआशरे के अंदर आप देखिए जब उनसे सवाल किया जाता है कि ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, फौरन वो कहते भाई ईसाई लोग मनाते इस वजह से हम भी मनाते हैं। आज एक आम इंसान अहलुल हदीस भी वो काम करता है और वो ये है कि अपने बच्चे या खुद का बर्थडे मनाता है और उससे जब सवाल किया जाता है बहुत सारे ये कहां से आया, यही यहूद और नसारा से ये चीजें आई है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती के साथ इसकी वईद फरमाई है, हमें ये सारी चीजें सीखनी होगी। और इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो बड़ी शिद्दत के साथ फारस और रोम की इत्तिबा करेंगे। ये सारी जो हदीसें हैं मेरे दीनी भाइयों, ये सारी हमें इस बात से आगाह कर रही हैं कि हमें इन यहूद और नसारा की पैरवी नहीं करनी है, हमें इनकी इत्तिबा नहीं करनी है, हमें इनसे दूर रखना है, हमें इनसे अपने आप को दूर रखना है, अपने अहलो अयाल को दूर रखना है, अपनी कौम को दूर रखना है। और मुआशरे के अंदर अगर इस तरीके से कोई काम हो रहा है तो हमारा काम यह है कि हम डटकर उसका मुकाबला करें, हम डटकर मिंबरों मेहराब से ऐलान करवाएं, सख्ती के साथ मना करें। जितनी हमारे पास ताकत है उतनी हमें चाहिए कि हम उसकी मुखालिफत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अगर कोई मजहब काबिल कबूल है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अगर हम ये समझते हैं कि हिंदू मत भी अच्छा है, ईसाइयत भी अच्छा है, यहूदियत भी अच्छा है, तो हम बिल्कुल गुमराह हो चुके हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और कहा वमन यब्तगी गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता अगर इख्तियार करेगा, कोई दूसरा तरीका अपनाएगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो उसका वो अमल काबिल कबूल नहीं होने वाला, उसका अमल काबिल कबूल नहीं होने वाला है। वो फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा, खसारा उठाने वालों में से। मेरे दिली भाइयों, मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमारे पास सवाब हासिल करने के लिए एक रास्ता नहीं है, हमारे पास हजारों सैकड़ों रास्ते हैं। जी हाँ, अगर हम सवाब हासिल करना चाहें, जो चीजें सही समझ से आपको मिल जाएगी, हम बिल्कुल उस पर अमल करें। और उसके अलावा जितने रास्ते हैं जो बिदात और खुराफात के रास्ते हैं, हमें बिल्कुल उसको तर्क करना होगा। और मुआशरे के अंदर अगर इस तरीके से कोई चीजें जन्म ले रही है तो हमारा काम है कि हम उसको रोकने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और कहा वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कहा उस फितने से बचो कि जब वो फितना आएगा तो वो सिर्फ जालिम लोग खास नहीं होंगे, उसमें आवाम और खवास सारे लोग मुलव्विस हो जाएंगे। अभी बारिश की तेज बारिश हुई, बहुत सारे लोग परेशान हुए। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी आफतें, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो जाहिद है, जो मुत्तकी परहेजगार है, वो बचा नहीं हो सकता। जी हाँ, तो इसका कहने का मतलब, इस आयत का कहने का मतलब यह है कि हम जो बुराइयां देखें, हमारा काम है कि हम उसको रोकने की कोशिश करें। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर कोई भी गुनाह का काम हो रहा हो, हमारा काम है कि हम डटकर उसका मुकाबला करें और उसको रोकने की कोशिश करें, हर तो इनका जितनी हमारे पास ताकत है। और इसी तरीके से हम उलमा का साथ दें, उलमा के साथ रहें और चंद उन जुहाल के साथ ना दें जो आमतौर पर लोगों को भड़का कर या लोगों के साथ गलत मैसेज डालकर और इस तरीके से मुआशरे के अंदर बिदात और खुराफात को जन्म देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए वही सुनाई हो। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तक़फु मा लैसा लका बिही इल्म, वला तक़फु मा लैसा लका बिही इल्म। उन लोगों के लिए तंबीह की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको इल्म नहीं है। फरमाया, कहा कि अपनी जबान से कोई ऐसी बात ना कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो आम लोगों को यह होना चाहिए कि कोई भी कोई फतवाबाजी ना करे। इसी तरीके से अल्लाह हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतसिरुहु मिनन नास वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़बज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहालन
اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو علم ہے یہ ایسے ہی اللہ رب العالمین نہیں اٹھائے گا اس کو، بلکہ جو علماء ہیں بڑے بڑے علماء اور ان کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ اور جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ چند جو حال کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا مفتی بنا لیں گے اور ان سے خود فتویٰ پوچھیں گے اور وہ لوگوں کے درمیان وہ فتویٰ جاری کریں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ فتویٰ بازی نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری بدعتیں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر آپ یوٹیوب چینل اور دیگر ذرائع سے آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ بہت سارے ایسے جن کا کہیں مدرسے یا اور چیزوں میں ان کا وجود نہیں ہے لیکن مفتی بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء کا ساتھ دیں، علماء کے ساتھ رہیں، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی دین کے اندر کوئی چیز ایجاد نہ کرنا، متقی اور پرہیزگار بن کر رہنا، اور اس کا انجام جو آدمی یہ ساری چیزیں کرے گا اس کا انجام بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے بعد فرمایا تھا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جب لوگوں نے چلا تو اللہ رب العالمین نے ان پر انعام کیا، اپنا انعام کیا۔ اب جانیے وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، وہ نبیوں میں سے ہیں، من النبیین والصدیقین اور سچے لوگ ہیں، والصالحین اور صالح لوگ ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ہم صدیقین بن سکتے ہیں، ہم صالحین بن سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم صدیقین میں سے ہمارا نام ضرور ہوگا، صالحین میں سے ضرور ہمارا نام ہوگا، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک بار پھر سے میں کہنا چاہوں گا کہ دین کے اندر اگر ہم نے ذرہ برابر بھی کوئی کام ایجاد کیا تو ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی روزے رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری اکارت ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ہماری برباد ہو جائے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر، قوم و ملت کے اندر ہم قرآن و سنت کو فروغ دیں، قرآن و سنت کو لوگوں کے سامنے لے جائیں، ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے عام کریں، لوگوں کو بتلائیں یہ اصل ہے، یہ قرآن ہے، قرآن اس چیز کا تعلیم دے رہا ہے، حدیث اس چیز کی تعلیم دے رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر کسی کی ضرورت ہے، ہر کسی کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف علماء ممبروں میں کو چل رہا ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بتلائیں، ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کے اندر جو بدعات و خرافات ہو رہی ہے لوگوں کو اس کے تئیں سمجھ عطا فرمائے، لوگوں کو اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو اس سے بیزاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔